Hello everyone. We'll just continue from where we left last time around when we were discussing the basics of ethics. You remember last time around we were discussing about aptitude. We also discussed about attitude, the cross functionality, the relation between attitude and aptitude, everything we discussed in the previous lecture. So today we'll just continue from where we left last time around. But before I start, I'll just give you a glimpse about what we did in the previous class. I'll just give you a small recap. The previous session we discussed about aptitude being innate, yes, which is turned into an ability, and then with continuous practice it becomes a skill. We talked about attitude also, how attitude shapes your behavior. Yes, all these things we discussed. Today we will be discussing aptitude with regards to intelligence, and then we will be discussing about the foundational values of ethics of a civil servant. All these things we'll be discussing today. Now this is the question. What is aptitude and what is intelligence? We had discussed categorically in the previous class what is aptitude. Aptitude innate. Yes, when you're born with certain specialities. That is what we say always. When we prepare for this particular examination, UPSC examination, I always suggest my students never try to emulate anyone. Never try to emulate any topper. I say it time and again because you are unique. You are different than what the topper is. His or her preparation methods are different than yours. He may be strong in history. You may be strong in polity. So your preparation method is unique. Yes. So what is your strength is innate. Whatever you have inside is something which you have from your birth. So that is what is your aptitude. And in terms of intelligence, we'll discuss how intelligence acts as a means for your success. Yes, they are kind of related, kind of distinct, both aptitude and intelligence. They may look distinct, they may look related, but here, what we will be doing is we'll be comparing both of them. Yes, aptitude. As we discussed in the previous class, it defines something known as your specific potential in a particular domain. Let's say we discussed about बैटिंग इन द प्रीवियस क्लास. आपका बैटिंग में काफी अच्छी प्रतिभा है, तो वो आपका पोटेंशियल है कि ये इतने घंटे बैटिंग कर सकता है बिकॉज यू बैट वेल. यस, व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल कैपेसिटी टू लर्न, रीजन एंड अडॉप्ट. यस, किसी भी चीज के प्रति आपका जो रवैया है, आप कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, कैसे आप उसको सीखते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, ये सब डिसाइड करेगा कौन? आपका इंटेलिजेंस. यस, तो एप्टीट्यूड किसी स्पेसिफिक डोमेन में होता है, ये इन जनरल होता है. नेक्स्ट, दिस इज रिलेटिवली इनेट. बचपन से ही आपके अंदर है, पैदाइशी है ये. आप पैदा होने के साथ साथ ये आपके साथ डेवलप होता है. हमको पता होता है, नहीं पता होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर. बट यह इनेट. इंटेलिजेंस क्या है? इट इज बोथ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो इंटेलिजेंस होता है वो आपके माता और पिता से आता है. यू गेट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स. इट्स जेनेटिक. मेनी टाइम्स दैट हैपेंस. Yes, Marie Curie's daughter also received a Nobel Prize. Marie Curie received Nobel Prize. There's another man whose name was Bragg. So Bragg and his son, both of them got Nobel Prize for discovering the coordination number in chemistry. That is genetic. ऐसा भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे acquire भी करें आपका
इंटेलिजेंस धीरे धीरे, इट कैन बी इनेट, इट कैन बी एक्वायर्ड. एप्टीट्यूड कैन बी फिजिकल और मेंटल. जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, या तो आप मैथ्स करने में आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, या तो आपका क्रिकेट खेलने में आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, या आप फुटबॉल खेलने में आपका अच्छा है, या आपका वेट लिफ्टिंग में आपका एप्टीट्यूड अच्छा है. So that can be both physical as well as what? Mental. But intelligence is predominantly with regards to your brain. Cognitive in nature. आपके दिमाग के साथ इंटेलिजेंस क्या जो रिलेशन है वो दिमाग के साथ है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ नहीं. Yes, so that is why in our Sanskrit texts also we say buddhir jasya balam tasya nirbuddheshu kuto balam. So it is all about intelligence. Then what is aptitude help you to? Aptitude helps you to identify what you can do well. My own aptitude is that I keep wickets properly. I'm a good wicket keeper. So I would try to what? Develop myself as a wicket keeper. Let's say I have my innate ability to sing. I will try to develop myself as a singer. But in this case, it is all about your problem solving capacity. How do you react to a particular stimulus? How do you react to a particular situation? How does your brain respond to that? So it is about determination of how one learns and solves problems. Problems जब आपके सामने आती हैं तो आप कैसा व्यवहार करते हैं वो आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से पता चलता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी distinguished aptitude and intelligence. They may be related, they may be distinct, but in both the cases, we learnt it as distinct concepts. Yes? Now, how do you harness your aptitude? आपके अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं, आप उसको कैसे हार्नेस करेंगे? Like we do, कोई टेस्ट करवा दे, हम कोई एग्जामिनेशन करवा दे, अगर फिजिकल है तो हम ट्रायल करवा ले कि भाई ये इतना मीटर जंप कर लेता है, ये इतना मीटर दूर जैवलिन फेंक लेता है. सो इट कैन बी एनीथिंग. टेस्ट, एग्जामिनेशंस, ट्रायल्स आर अ गुड मैकेनिज्म्स टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट. Once you know that you are good at something, then what you will have exposure. Yes, I am good at javelin throw. So I will start what? I will start looking for coaches who can coach me in javelin. I will start looking for academies which can train me in javelin. And I am self-aware. I will have awareness about what I am doing. Then start practicing and then experience it so that I can confirm that yes, I am good at javelin throw. तो ये है सेकंड स्टेप, रियलाइजेशन ऑफ योर एप्टीट्यूड. जहां पे आपको एक्सपोजर दिया जाएगा, आपको अवेयरनेस कराया जाएगा और एक्सपीरियंस कराया जाएगा. ये सारी चीजें जब आपके अंदर हो जाएंगी तभी आप रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ भाई मेरे अंदर ये प्रतिभा है. के बाद क्या है? थर्ड है अलाइनमेंट. एन इंडिविजुअल में एस्पायर टू वन प्रोफेशन बट रियलाइज थ्रू एक्सपीरियंस दैट another domain is better suited. I'll give you an example. There are multiple bureaucrats who left their job to pursue some other passion. They were good at that. Somebody became a singer. Somebody became a theater artist. कोई प्रोफेसर बन गया. Yes, that is kind of a condition wherein आप थ्रू एक्सपीरियंस रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर कुछ और प्रतिभा है जिसमें आप और ज्यादा अच्छे हैं, आप वो फॉलो करने चले जाते हैं. दैट इज अलाइनमेंट विथ योर एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड कैन बी मल्टीपल, कैन हैव मल्टीपल एप्टीट्यूड. जहां पे आपको लगने लग जाता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा या अच्छी हूं, आप वो करते. अलाइनमेंट. यस. तो
हमने तो पहले पढ़ लिया आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के बारे में. दिस आर बेसिक्स. Once we learn what is this, then what we need to do is we have to understand what are the values, the foundational values which a civil servant must possess so that he can become, he or she, a good bureaucrat, good civil servant, a good public servant. तो बनने के लिए हमारे अंदर कुछ वैल्यूज होना बहुत जरूरी है. तो वो वैल्यूज क्यों चाहिए, वो वैल्यूज क्या है, उसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं. Why are they so important? They are important because they are the ethical bedrock guiding the public servants. ये एक ऐसा बैकग्राउंड है, ये एक ऐसा आपका सपोर्ट सिस्टम है जिसके बिना आपका ब्यूरोक्रेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा. ही कैन नॉट. विदाउट दिस वैल्यू a bureaucrat cannot function. These are essential in guiding the bureaucrat, the public servant, to lead an ethical governance structure. तो ये बहुत ही जरूरी है. यस, इसमें क्या होगा, अगर आप के अंदर ये वैल्यूज है तब आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे. So you will start following the rule of law and also start following the constitutional morality. Constitutional दायरे में रहते हुए आप लोगों के उत्थान का काम करेंगे. So that is what is important. This is the, let's say it is kind of a framework through which a bureaucrat needs to function. These values. Yes, क्यों जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो लोग हैं काफी डाइवर्स है, हमारा कल्चर डाइवर्स है, हमारा ज्योग्राफी डाइवर्स है, हमारा सब कुछ ही बहुत डाइवर्स है. So when it's so diverse, it is important that there will be inequalities. Yes, when you have inequalities, it is imperative that you provide justice as enshrined in your constitution. In your preamble it is there, in your DPSPs you make an effort to somehow reach those. Yes, तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करते हैं आप. दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग इक्विटी. क्वालिटी नहीं, आप इक्विटी देने की कोशिश करते हैं. इनइक्वालिटी है तो इक्विटी देने की कोशिश करते हैं. इसका जितना है उसके हिसाब से मिलेगा. यस, और आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज इसलिए भी है, जरूरी है सो दैट ये पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाएगा गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाएगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. बिकॉज अ डेमोक्रेसी where there is a trust deficit between the administration and the general populace is a dysfunctional democracy. It's a defunct democracy. So it is imperative that the civil servants work in tandem with these values so that that trust is maintained. Getting my point? So हमारा जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन था उसने कुछ कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज दिए कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. ये हम अगर फॉलो करें, हमारे ब्यूरोक्रेट्स अगर फॉलो करें, दैट विल लीड टू अ कंडीशन वेयर इन वी कैन हैव वन ऑफ द बेस्ट गवर्निंग स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज इंटेग्रिटी and impartiality along with objectivity and non-partisanship. We'll go one by one. You have empathy, compassion, tolerance. Second, you have dedication and commitment.
the some of the values which a civil servant needs to have in order to become a good bureaucrat, a good civil servant. Yes, तो हम ये सब के बारे में बात करेंगे. सुनो, ये सब होना क्यों जरूरी है? Why is it necessary? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फाउंडेशनल वैल्यूज है, ये बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि हम एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इस हिसाब से बनाना चाहते हैं सो दैट लोगों का भी ट्रस्ट बना रहे और आप भी एथिकल काम करते हैं. आपके पास हमेशा डिस्क्रिशनरी पावर होता है, बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर होता है. यस, bureaucrats have lot of discretion. When they have lot of discretionary power, it is imperative that there will be some kind of wrongdoing. हो सकता है कि कोई गलत काम हो जाए, हो सकता है कि कहीं करप्शन हो जाए, नेपोटिज्म हो जाए, फेवरेटिज्म हो जाए, रेड टेपिज्म हो जाए, क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाए किसी के साथ मिलके. So it is important that these foundational values act as the guiding light so that your discretionary powers do not lead to discrepancies, do not lead to corrupt practices, do not lead to nepotism, do not lead to favoritism or any kind of crony capitalism. So it is very essential that you have these foundational values. Yes, it helps you in ethical decision making. डिस्क्रिशनरी पावर जितना है वो अच्छे से हो, आप अच्छे से उसका इस्तेमाल करें, आप एथिकल डिसीजन मेकिंग करें, और उसके अलावा जो भी आप डिसीजन लें इससे पब्लिक का उत्थान हो, बेनिफिट्स हो, उनके इंटरेस्ट का फुलफिलमेंट हो. दिस इज व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड हैविंग दीज फाउंडेशनल वैल्यूज. गेटिंग माय पॉइंट? Now, somebody started this conversation with the first topic of this foundational value, that is integrity. Integrity क्या है? Integrity का मतलब यह है कि there is a congruence between what you think, what you say and what you do. आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं, तीनों में समानताएं होनी चाहिए. अगर ये नहीं हुआ तो आप हिपोक्रेट कहलाए जाओगे. अगर आप ये करते हैं then you will be called an integral person. Yes, and if you do it, somebody is thinking something, saying something and following the same, he or she will be called a integral person, or the broader terminology for that is called the walking the talk, as written here. For walking talk. Yes, कोई let's say चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाता है, वो बहुत सारे योजनाओं में पार्टिसिपेट कर चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, और खुद अपने बेटे या बेटी का चाइल्ड मैरिज करवाता है. एन इंटीग्रल पर्सन? एब्सोल्युटली नॉट. जो आप सोचते हैं, जो आप आपका विश्वास है और जो आप करते हैं, तीनों में पूरी समानताएं होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा? आप इंटीग्रल नहीं, आप हिपोक्रेट हैं. आप जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, दोनों में कोई भी समानता. इधर चलिए, ऑनेस्टी का के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का मतलब यह है कि आप सच की तरफ हैं. यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर स्टैंडिंग विद द ट्रूथ, यू आर फॉलोइंग ट्रूथ, you are experiencing truth, everything in a truthful manner. Yes, however, when we compare that with what? When we compare that with integrity, integrity क्या होगा? Integrity is आप ethical standards अगर create करते हैं, आप अगर ethical standards create करते हैं,
आप हमेशा वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते जाएंगे, आप कभी भी वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को तोड़ेंगे नहीं। कभी अगर कोई देख नहीं रहा हो आपको, कभी अगर आप किसी असुविधा में आ गए हैं, माने यू हैव फेस्ड problems, so you will be doing something wrong. No, absolutely not. Even when somebody is not watching you, even when there are no rules, even when it is very inconvenient, then also you are consistent to what you think. जो मैं सोचा था मैं वही करूंगा, चाहे कोई मुझे बोले ना बोले, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। I am totally unperturbed by everything that's happening outside. मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, जो मैं सोचा हूं। Yes, what a fantastic example. Following the traffic rules even without cameras. That is doing the right thing when nobody is watching, which I just mentioned. आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप ट्रिपलिंग जा रहे हो, हेलमेट पहने हो नहीं पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल यू आर वेयरिंग योर हेलमेट। स्टिल आप लोग दो लोग, स्टिल आप वहां पे रुक गए हो सिग्नल पे, कोई एक आदमी नहीं, कोई कैमरा नहीं, स्टिल यू फॉलो इट, दैट मीन्स यू आर गर्ल। यस, एक चीज है, somebody asks, सर हमारे में अंदर अगर इंटीग्रिटी इंटेग्रिटी अगर है तो इंटेग्रिटी, हाउ डू वी get integrity? What drives the integrity? What are the factors that push the integrity? So if we talk about the factors pushing integrity, यहां पे तीन चीजें आ जाती हैं। What are they? What are the three factors? The first one is courage, conviction, and commitment. These are the three C's. These are the three C's of integrity. Courage क्या है? You do your work. You think that is correct. You do your work without thinking about the consequence. आप consequence के बारे में नहीं सोचते हो, आप अपना काम करते हो। Yes, that for that you need to have lot of courage. Courage is essential for you to have integrity. Yes. Next, what is conviction? If I were to discuss about conviction, तो conviction में क्या बोलेंगे? Yes, how will we discuss conviction? Conviction का मतलब क्या है? Commitment क्या है? ये दोनों चीजें क्या है? तो these are essential in determining your what? अगर मेरा conviction ये है कि मैं अपना जो मेरा जो स्पीच है, मैं जो बोल रहा हूं, उसको मैं सही जगह रखता हूं। If I keep what I feel, what I think, what I say in the right place, मेरा कन्विक्शन ये है कि मैं ये सोच रहा हूं, अगर मैं ये सोच रहा हूं तो मैं वो फॉलो करूंगा। दैट इज व्हाट इज कन्विक्शन। और कमिटमेंट में क्या है कि आई विल स्टिक टू द हायर मोरल स्टैंडर्ड्स। मेरा कमिटमेंट ये है कि मैं ये मोरल स्टैंडर्ड्स, मैं जो स्टैंडर्ड्स खुद सेट किया हूं, मैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो करूंगा। मैं अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करूंगा और आपके लिए अलग स्टैंडर्ड सेट करूंगा, दैट विल नॉट हैपन। इफ आई एम सेइंग that you will have to wear a helmet when you go out, that means I will also have to wear that helmet when I go out. There will be no double standards. I am committed to the same moral standards in which I ought to see. मैं अपने लिए भी उतना रखता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी वही फॉलो करें।
ये तीनों चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है कि आपके इंटेग्रिटी को पुश करे। यस, देखिए, अगर आप इंटीग्रल है तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा कि हाँ भाई साहब ये जो बोल रहे हैं ये वो करते हैं। यस, तो योर क्रेडिबिलिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, योर क्रेडिबिलिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा तो गवर्नेंस बढ़ेगा। तो डोंट यू थिंक वी आर इन अ वे ट्राइंग टू एम्बोल्डन आवर डेमोक्रेटिक सेटअप। इंटीग्रिटी एक ऐसा फैक्टर है जिससे पूरा पब्लिक ट्रस्ट ही बढ़ जाता है। डेमोक्रेसी में अगर ट्रस्ट ना हो तो वो कैसे डेमोक्रेसी है? तो ये देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको ब्रिज करने की कोशिश, उसको ब्रिज करने की कोशिश कर, उसको कम करने की कोशिश कर। तो इंटेग्रिटी इज अ वेरी वेरी एसेंशियल वैल्यू इन व्हाट? इन ब्रिजिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। यस, एक एथिकल इंडिविजुअल अगर है तो इंस्टीट्यूशन भी एथिकल हो। यस, इंस्टीट्यूशन अगर अगर एथिकल हुआ तो भाई सोसाइटी भी होगी एथिकल। अगर पूरा सोसाइटी ही एथिकल हुआ तो इट्स द राम राज्य। लिसन टू मी, अ सोसाइटी द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। इफ द एंटायर सोसाइटी made up of ethical integral individuals, don't you think we are living in paradise? That is what we are looking for. That is what the Ram Rajya concept is all about. Okay, अगर एक आदमी इंटीग्रल है उसके अंदर बहुत सारे गुण भी हो जाते हैं, क्रिएटेड मोरालिटी, पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास। यस, मैं जो सोच रहा हूं मैं वो कर रहा हूं तो मुझे कोई दुख नहीं। अगर मैं वो जो सोच रहा हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, देन आई विल हैव क्वाल्म्स, आई विल हैव अनहैप्पीनेस, आई विल स्लोली स्लिप इनटू डिप्रेशन। मैं जो सोच रहा हूं वो मैं नहीं कर पा, और मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं वो कर रहा हूं, पर्सनैलिटी इज ऑल इंटीग्रेटेड, आई विल बी सेटिस्फाइड, पूरा इनर सेटिस्फैक्शन होगा मेरे अंदर। तो ये आदमी खुश होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, इनका कंपास हमेशा ठीक डायरेक्शन में दिखाता है कि आपको ये करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, सो दैट व्हाटएवर यू हैव थॉट, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। यस, resistance to external pressure. I was talking few minutes back that environment कितना भी आपके अनुकूल ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो सही लगता है, आपने जो सोचा है, आप वो करेंगे 100%। यू विल डू इट 100%। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हो आप नहीं कर, तो दिस विल रिड्यूस करप्शन, रॉन्ग डूइंग, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, यहीं पे कट गया। पीस ऑफ माइंड एंड बेटर सर्विस डिलीवरी। यस, तब मैं खुश हूं, भाई मैं जो चाह रहा हूं मैं वो कर रहा हूं, मेरा दिमाग एकदम शांत है, मैं स्थित प्रज्ञा, आई विल नॉट थिंक मच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, देन आई विल बी द one who will give you better services, because I do not have any preconceived notions, I do not have any motive of giving it to someone else. I only have one motive, how to do that job properly as per the rules and regulations. So quality of service delivery will also, yes, ये आदमी लोग कौन होते हैं? ये लोग रोल मॉडल लोग होते हैं, ये दुनिया के लिए रोल मॉडल होते हैं। भाई ये वही आदमी है, बोला वो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगा, बिकॉज दैट इज इलीगल, 15 दिन में तोड़ दी। यहाँ पे एनक्रोचमेंट से हटाएगा, हटा दे, ये रोड टूट गया है इसको कर दूंगा, कर दिया। ही विल बी नथिंग बट एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। यस, तो इंटेग्रिटी एड्स टू योर ट्रस्टवर्दीनेस, इंटेग्रिटी एड्स टू योर डिपेंडेबिलिटी। ये दोनों ही चीजें आई डिस्कस फ्यू मिनट्स बैक, दैट दिस विल एड टू द trust factor between the populace and the administrative structure. जितना trust
उतना स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी. I just discussed courage, conviction, and commitment. Without the three C's, integrity is meaningless. Integrity cannot even exist. आपके अंदर courage होना चाहिए to face the consequences without any fear. Conviction में you have to have the ability to stand with what you have done. मैंने ये काम किया है, आई विल स्टैंड बाय इट कम व्हाट में. और कमिटमेंट मैंने वही बोला है कि वी आर एडहरिंग टू द हायर मोरल स्टैंडर्ड्स. ये नहीं कि आपके लिए स्टैंडर्ड्स अलग है, मेरे लिए स्टैंडर्ड. अगर मैं आपको उसमें देख रहा हूं तो मेरा कमिटमेंट, मैं अपने आप को भी वहीं पे देखूंगा, नहीं तो मैं इंटीग्रल नहीं. यस. नाउ द मेन क्वेश्चन इज इंटेग्रिटी स्टिल एक्सिस्ट. इंटेग्रिटी या इंटेग्रिटी इरोड हो चुका है? इंटेग्रिटी अगर इरोड हो चुका है, किस कारणवश इंटेग्रिटी इरोड हुआ है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है. चलिए. मेन इज मटीरियलिज्म, एक्सेसिव प्रॉस्पेरिटी. जब आपके सामने दुनिया भर के लैविश चीजें, ऐशो आराम दिखेगा, सारी जनता इस्तेमाल करे, तो आपके मन में भी एक लड्डू फूट सकता है या दो लड्डू फूट सकते हैं. फूटेगा तो आर गॉन. आप और इंटेग्रिटी वाले कैटेगरी में नहीं, पर करप्ट. या फिर ऐसा होता है कि आपके समक्ष सारे लोग ये सारी चीजें का इस्तेमाल करते हैं. कोई आईफोन, से गुची का बैग, ऑल important and imported stuff being used by your colleagues. It's a pressure. मैं भी करूं यार, मेरे पास तो कुछ, मेरे घर में तो फटा सोफा है. I need to buy very costly furniture for my wife, for my children. I need to buy iPhone. You are falling into the trap of materialism, social pressure, status. इन सब के चक्कर में आदमी घुस जाता है, तो इंटीग्रिटी वहां पे पूरा पूरी इरोड हो जाता है. यस. या फिर ऐसा होता है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई दोस्त यार है जिसको बेनिफिट्स मिलने वाला है आपके डिसीजन से, आप वैसा ही काम करने लग जाते हैं जिससे आपको बेनिफिट्स, आपके दोस्तों को बेनिफिट्स मिल जाए, तो आप वो सब काम करने लग जाते हैं. यस. आदमी अपने लिए ज्यादा नहीं करता है, आदमी अपनों के लिए ज्यादा काम करता है. कोई अपनों का जब आप सोचने लग जाते हैं, देन दीज थिंग्स स्टार्ट क्रीपिंग. यस. नेक्स्ट इज व्हाट. देखिए, और एक प्रॉब्लम है कि हमारा अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर बहुत पुअर है. हमारे पास अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत ही पुअर है. आई गेव एन एग्जांपल इन द प्रीवियस क्लास. एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द ओडिशा कार्डर वाज कॉट विद अ लॉट ऑफ कैश. कुछ नहीं हुआ. is still in the service, nothing happened. And the other thing is, we have normalized unethical behavior. हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया है कि भाई ऐसे कामों में, ऐसे जगहों में अगर आपकी पोस्टिंग है, अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे होना लाजमी है. इसमें हम कोई दो राहें नहीं रखते हैं. तो सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड कि ये आरटीओ में है तो इसके पास पैसे होगा, ये इनकम टैक्स में है तो इसके पास हो सकता है, ये कहीं पे कुछ कर रहा है तो इसके पास भी पैसे हो सकता है. ये हम नॉर्मलाइज्ड करप्शन, रादर देन लुकिंग एट देम विथ कंटेम्प्ट, वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट देम विथ ऑ. जब सोसाइटी ही ऐसे हो गई है तो भाई आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटेग्रिटी इज गोना गो फॉर अ टॉस. यस. और ऐसा भी हो सकता है एक टाइम के बाद अगर आप ये सब चीजों में घुस गए, तो आपका जो, आप जो सोच रहे थे पहले कि नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, पर आप कर रहे हैं, तो वो ना गिल्ट ट्रिप, मोरल गिल्ट आपका चले जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड चले जाता है, बिकॉज यू थॉट समथिंग एल्स, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो यू गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप. देयर इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस. आपका माइंड काम नहीं, आपका कॉन्शियंस और आपको सपोर्ट नहीं करता है कि भाई तू बोल कुछ रहा था, तू कर कुछ और रहा है. आपका इनर पीस छिन जाता है. ये सब चीजें होने लग जाती है जब आप अपना इंटेग्रिटी को हराने लग जाते हैं.
how do we inculcate integrity society? एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे चाइना के, कॉन्फ्यूशियस वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सोशल डिपेंड ऑन इंटेग्रिटी एंड एट इंडिविजुअल एंड फैमिली लेवल. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इंटेग्रिटी जो चाहिए वो कहां से आएगा? वो सोसाइटी से आएगा. सोसाइटी किससे बनता है? इंडिविजुअल से बनता है. इंडिविजुअल्स घर बनाते हैं, घर से सोसाइटी बनता है. तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आपके घर में ही इंटेग्रिटी आपको सिखाया जाए तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी इंटेग्रिटी ऑटोमेटिकली रह जाएगा. यस, तो he was of the opinion that these things should start from your home. If this starts from your home, automatically the society becomes integral. Gandhi says that happiness arises when thought, speech and action are in harmony. Exactly. जब तीनों हार्मनी में है, that means आपके अंदर इनर पीस है. There is no dissonance. और डिसोनेंस नहीं है तो आप खुश हैं. मे बी आपके पास मटेरियल चीजें नहीं है बट आप इनर पीस लेके घूम रहे हैं. यस, यू बिकम अ ट्रस्टवर्दी सिविल सर्वेंट. the society in itself becomes just an ethical society. Yes, where there is idea of justice, ethical governance, welfare and moral citizenship. भले कोई ट्रैफिक वाला हो ना हो, कोई तोड़ नहीं रहा है, भले कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, फाइनें पड़ रही हो ना, कोई कचरा नहीं फेंक रहा है. एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर योर इंटेग्रिटी. आपका मोरल कंपास आपको गाइड कर रहा है. तो गाइड कर रहा है तभी जाके आपका सोसाइटी एक राम राज्य बन सकता है. यस, तभी जाके जस्टिस प्रिवेल कर सकता है, तभी जाके एथिकल गवर्नेंस हो सकता है. एथिकल गवर्नेंस तभी होगा जब आपके अंदर इंटेग्रिटी. वेलफेयर भी तभी हो सकता है स्टेट का जब आपके अंदर इंटेग्रिटी भर भर के हो. This is some of the questions we have formed, so that will be sent to you in your PDF. So in gist, we understood everything about integrity. In the next lecture, we will be discussing some other foundational value. Thank you.